Good morning, Rituraj. Very, very good morning, everyone. How are you? Uh, a little bit fine, having some cold and throat problem, but it's okay. Now I think I should take class today. So we are starting today. I hope. Chaliye. So, see. So I welcome you on the filler farm app. Nice, nice. Thank you. Okay. Chaliye. So here is the platform, and today we are going to discuss again. Our session is going on the cultural studies. So we will discuss about cultural studies. My voice, audio, video, everything is fine. Yes or no? Everything is fine. I hope. Uh, okay, you have joined the class. See. So here are the facilities and everything, and now yes, okay, okay. Nice. ठीक है ना? Thank you. See, so here is the code DISENG10. By using this code, anyone can take 10% off. ठीक है? And actually, our courses are very reasonable, है ना? Yes. And here I'm your mentor. And now let's move towards the today's class without getting delay. है ना? चलिए. So today we are going to discuss cultural studies. We have already started. Let's revise for a little bit, and then we will go ahead. अब देखिए कल्चरल स्टडीज में हमने कुछ कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं. कल्चरल स्टडीज है ना, मार्क्सिज्म और कैपिटलिज्म, और ये जो विचारधारा ही कार्ल मार्क्स को लेकर के है ना, ये भी कल्चरल स्टडीज का पार्ट है. कल्चरल स्टडीज और क्यों ना हो, क्योंकि समाज जो है वो क्या है, समाज का पूरी दुनिया में अलग अलग लैंग्वेज को जानने वाले, अलग अलग रहन सहन, अलग अलग रीति रिवाज, ट्रेडिशन को मानने वाले, है ना, कस्टम्स को मानने वाले, अलग अलग फेस्टिवल्स को मनाने वाले, अलग अलग फिलोसॉफी, अलग अलग रिलीजन. देर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ you can say varieties are there in the society, in all over the world. And according to that philosophy, according to that social principles, the people they live together, they behave like that. And that is why there is a structure, a kind of a structure is developed. Next हम पढ़ने वाले हैं structuralism. We will try Ritu, है ना? Otherwise we have to I honestly I'm telling, I don't tell lie. Definitely maximum part we will cover. These 3 units definitely will be covered very soon. Cultural studies, then theory and criticism will be covered within very soon. And then all three, as I told you, all 4 units, 1, 2, 3, and 4, they will be started combinedly. Okay, we will start combined. So definitely don't worry, I will complete, I will cover all the syllabus, and very I'm giving the content very nice. ठीक है, see. So as I told you, structuralism मतलब कोई भी जो समाज के द्वारा एक कोई ना कोई प्रिंसिपल एक डेवलप हो जाता है, तो उसकी एक मान्यता बढ़ जाती है. तो एक मतलब उससे यही क्या है, कल्चरल स्टडीज का पार्ट है. द वे ऑफ लिविंग लाइफ, द वे ऑफ टॉकिंग, द वे ऑफ बिहेवियर, द वे ऑफ फॉलोइंग ट्रेडिशंस, कस्टम्स, रूल्स. These are the part of the cultural studies, and now it has become, this part has become many more, because there are, we can say, economic condition also affect the society, social conditions, political conditions, religion. These all things, sorry, these all things affect the society and made the scenario of the society. And that is why this is need to be discussed. In Marxism, in capitalism, जो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि समय के साथ में क्या हुआ है, समाज का निर्माण हुआ, हम पढ़ेंगे, पढ़ा है इसमें. समय कल्चरल है ना, क्या हुआ, प्रोडक्शन में जो है, उत्पादन के साधन संसाधन पर जो लोगों का जो ओन करने का या मालिक बनने का, है ना, एक मालिक रह गया, एक मजदूर रह गया. तो ये इसने क्या किया है, कल्चरल जो इकोनॉमिकल ये सारी सिचुएशन ने क्या किया है, एक नए समाज का निर्माण किया है. पहले वो दौर था जब क्या था कि बहुत सारे लोगों के पास में बहुत सारे जमीन है, जायदाद है, और पशुपालन है,
और जो गरीब मजदूर वर्ग है वो केवल उसके है ना देख रेख करने के लिए है। मालिक कोई और है, काम कोई और कर रहा है। मालिक 3 लोग है, 4 लोग है, 5 लोग है, लेकिन काम करने वाले 500 लोग हैं। लेकिन लीड कौन कर रहा है? जो बुर्जुआ वर्ग है, ये वर्ड है कार्ल मार्क्स के, बुर्जुआ है ना, दे आर लीडिंग। तो ये सारे कॉन्सेप्ट, ये सब क्या है, क्या कल्चरल स्टडीज का पार्ट है। कैपिटलिज्म में वो यही कहते हैं कि कैपिटलिज्म में क्या होता है कि 10% लोग, 5% लोग जो है, या पूंजीवाद, उद्योगपति या जैसा भी है, वो लोग जो है अपने माइंड का यूज करके, जो ज्यादातर जो कॉमन लोग होते हैं, उनके श्रम का, उनके लेबर का उपयोग करके उन लेबर को अपनी प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करते हैं। आप देखिए दुनिया में जितने भी टॉप लोग हैं, जितने भी उद्योगपति हैं, जितने भी बड़े बड़े उद्योग घराने हैं, या जो कारपोरेट सेक्टर है, वहां पर आप देखेंगे 5-10% है। दुनिया की पॉपुलेशन एक तरफ और इनकी गिन लीजिए आप, तो आपको देखने में आएगा कि ये आपको 5 से 10% मिलेंगे। 90% पॉपुलेशन अभी भी कॉमन है। और दूसरी तरफ हम तुलना करें तो 90% लोगों के पास में जितनी धन दौलत है, उतनी ही धन दौलत केवल 10% लोगों के पास में होगी। तो ये सब जो है, ये कैपिटलिज्म है। और वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म जो है, ये कॉमन लोगों के अधिकारों के ऊपर हनन करता है। इसलिए मार्क्स, जो कार्ल मार्क्स है, वो इसका विरोध भी करते हैं। और जो 10% लोग हैं, उसको कार्ल मार्क्स बुर्जुआ कहते हैं। एवरीथिंग इज फाइन, आगे बढ़ते हैं। See, according to German philosopher, economist, and socialist Marx, social formations are based on the division of the production mode, which is strongly related to power and conflict. भाई जिनके पास में उत्पादन के साधन पर अधिकार होगा, भाई सब कुछ किसके आधार पे फॉर्मेशन हो रहा है? प्रोडक्शन के आधार पर। और जिसके पास में है ना उत्पादन के, यानी जो प्रोडक्शन है, आप देखिए, है ना, ये है, तो उसके पास पावर भी होगी, और फिर द्वंद्व होगा, जो मजदूर वर्ग है वो उसका विरोध करेंगे। ठीक है। द मोड ऑफ प्रोडक्शन हाउएवर चेंज्ड ओवर time from an ancient mode in the beginning to a feudal mode in the Middle Ages and of capitalist in mode in today। ये देखिए, है ना, एंशियंट में कुछ और था, पहले सामंतवादी व्यवस्था थी, है ना, मिडिल एज में आते आते फिर कैपिटलिस्ट, आज पूंजी, मतलब सिस्टम वही है, तरीका बदल गया है ना। आप देखेंगे बहुत सारे पहले हमारे देश में राजा महाराजा शासन करते थे, है ना, और आज देखिए, आज प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है, या आप कह लो कि जिलों में कलेक्टर है ना, मंत्री है। एक दौर बदल गया है, मतलब जो शासन करने का जो भाव है, वो दौर बदल गया है। और अभी आज की तारीख में हम कहते हैं कि हम लोकतांत्रिक है, यानी अब जनता की सहभागिता होने लगी है। तो इस तरीके से क्या है, दौर बदला है, लेकिन शासन जो लीडर है, शासन बदल गया है ना, शासन का तौर तरीका बदल गया है। पहले जनता को शामिल नहीं किया जाता, तब जनता भी शामिल होने लगी है। तो ये सारी आपको समझ में आना चाहिए। सब क्या है, कल्चरल स्टडीज का पार्ट है ना। ये हम पढ़ चुके हैं इसको। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। सी, ओके, एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज मशीन्स, फैक्ट्रीज एंड कॉर्पोरेशंस आर इंक्रीजिंगली प्राइवेटली ओन्ड बाय द अपर क्लास, आल्सो नोन एज बुर्जुआस, है ना। ये वर्ड जरूर आप ध्यान रखेंगे। कार्ल मार्क्स ने दिया है, किसको दिया है? ये अपर क्लास को दिया है, तो ये जरूर ध्यान रखेंगे आप। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, हियर ये देखिए, हियर इट बिकम्स अपैरेंट दैट कैपिटलिस्ट अकॉर्डिंग टू द कार्ल मार्क्स थ्योरी लीड्स टू क्लास डिवीजन। समाज में जो भेद है, जब समाज में जो वर्ग भेद है ना, जो द्वंद्ववाद है, उसको किसने लीड किया है? ये आप देखेंगे कैपिटलिज्म ने। क्यों कैपिटलिज्म ने? मैंने आपको कहा कि 10% लोगों के पास में उतनी ही प्रॉपर्टी है जितनी 90% लोगों के पास में है। तो जो 90% लोगों की जो वर्किंग स्किल है, जो उनका लेबर है, जो वो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, उनको कम मिलता है। लेकिन उसका ज्यादा बेनिफिट जो कारपोरेट होता है उधर जाता है, ऐसा कार्ल मार्क्स का कहना है। यानी इनका लेबर उनकी प्रॉपर्टी के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। 90% लोगों का जो कॉमन सेंस है, जो इंटेलेक्चुअलिटी है ना, उसका जो है वो कारपोरेट से ही अपने कैपिटलिज्म के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये हम कल देख चुके हैं, इन प्रीवियस क्लास वी हैव सीन। ठीक है। ओके, हु हैज जॉइंड रिसेंटली? ओके, सी, बाय द कमोडिफिकेशन ऑफ गुड्स व्हिच इज द प्रोसेस, ये हम कर चुके हैं कल। इसको एक बार और आपने देखना।
Cultural studies contested the economic determination demonstrated by Marxism and emphasized the importance of culture. Okay, Sunil, good morning. See, फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट हम पढ़ चुके हैं। फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट यही है, कार्ल मार्क्स की थ्योरी के बारे में ही ये कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1923 में। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 23 में। ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। इट इवॉल्व्ड इन जर्मनी वेयर मेनी इन्फ्लुएंशियल intellectuals, politicians, and Marxist thinkers were dissatisfied with the contemporary economic and social system। है ना? उस समय जब क्या हुआ था, जर्मनी में क्या हुआ था कि जो कंटेम्प्ररी इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम था, है ना, वो क्या है, वो बिल्कुल उनसे डिससेटिस्फाइड थे। वही इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम के साथ कौन कौन? फिलोसोफर, इंटेलेक्चुअल, पॉलिटिशियंस और जो कार्ल मार्क्स की विचारधारा को मानने वाले। क्या इकोनॉमिक सिस्टम था भाई? जो जिसका प्रोडक्शन के उत्पादन के साधनों पर जिनका अधिकार था वो लेवल में है, और निचला तबका मजदूरी कर रहा है, उनको उतना दाम नहीं मिल रहा है ना? इसलिए तो कार्ल मार्क्स कहते हैं, दुनिया के मजदूरों उठो, जागो और संघर्ष करो, तुम्हारे पास में खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय जंजीरों के, बेड़ियों के, है ना? तो ये कार्ल मार्क्स के बात है। तो यहाँ पर क्या है, उस समय उन्होंने फिर देखा कि ये भी एक पार्ट है हमारे समाज का, दिस इज आल्सो पार्ट, और इससे भी क्लास डिवीजन हो रहा है। तो दे वर एक्सट्रीमली क्रिटिकल ऑफ द कैपिटलिस्ट एंड मार्क्सिस्ट लेनिस्ट फिलोसॉफीज एंड सिस्टम ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। फ्रैंकफर्ट स्कूल applied Marxism to a radical interdisciplinary social theory by clubbing culture with Marxism, है ना? तो ये इनका ये है, मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर ये जो मार्क्सिज्म की जो विचारधारा है ना, उसको क्या है, क्लबिंग कर रहे हैं कल्चर के साथ में, यानी उसको एक तरीके से मान रहे हैं जो विचारधारा ये, क्योंकि अंततः जो कुछ भी हो रहा है समाज में वो इंसान के साथ हो रहा है, समाज के साथ हो रहा है, और समाज का के साथ में जो कुछ हो रहा है वो कल्चर का पार्ट है ना? द ग्रुप हैड मेनी कंट्रीब्यूटर्स इंक्लूडिंग एरिक फ्रॉम, है ना, ये हम देख चुके हैं, मैक्स हॉर्खेमर, वाल्टर बेंजामिन एंड हर्बर्ट मैक्सक्यू। They argued that technology naturalizes the cultural content which serves the capitalist class, hence it is not innocent in nature। ये देखिए टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, समझो। वो कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी क्या करती है, जो जितना भी कल्चरल कंटेंट होता है, कल्चरल कंटेंट का मतलब है कि उन्होंने कहा कि ये जो 10% लोग, ये जो कैपिटलिस्ट हैं, ये जो प्रोडक्शन पे जिनका अधिकार हो गया है, उसको इस तरीके से मॉडिफाई किया जाता है कि उसको क्या है, उसको नेचुरलिस्ट बने, मतलब एक तो एक नेचुरल बना दिया जाता है। यानी वो जो व्यवस्था है कि 10% जो टॉप है, टॉप मोस्ट है, वो उत्पादन के साधनों पर हक रखेंगे, 90% वहां काम करेंगे। तो इसको क्या करा उन्होंने, नेचुरल कर दिया। किसने? टेक्नोलॉजी ने। यानी एक तरीके से आदत में ला दिया, कोई विरोध नहीं करेगा, है ना? टेक्नोलॉजी नेचुरलाइजेस द कल्चरल कंटेंट। और दूसरी बड़ी बात है, ये टेक्नोलॉजी क्या है, ये कैपिटलिस्ट जो क्लास होती है उनकी सेवा के लिए होता है, और इसलिए वो कहते हैं कि इनकी प्रकृति इनोसेंट नहीं है। इनोसेंट नहीं है टेक्नोलॉजी का, इसका मतलब ये है कि ज्यादातर टेक्नोलॉजी जो है वो किसके लिए है, कैपिटलिस्ट क्लास के लिए है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ कंटेम्प्ररी सिनारियो लेट मी डिस्कस। यही टेक्नोलॉजी जो एक समय तक कैपिटलिस्ट का पूरी तरह से सपोर्ट करती थी, आती थी, लेकिन आज का तो आज हमारे ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे आज की तारीख में क्या है, आज टेक्नोलॉजी ने हमारे देश में विशेषकर आप देखिए बहुत सारी जो सोशल वेलफेयर स्कीम है उसको लॉन्च किया गया है, डिजिटल इंडिया हुआ है। तो आज टेक्नोलॉजी है ना, क्या है, कहीं ना कहीं हमारे गरीब तबके तक भी पहुंची है। बहुत सारी इमीडिएट जो रिस्पॉन्स होता है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो जाता है। सिंपल आप एक देखिए, सिंपली मैं आपसे कहूँ तो मान लें कहीं पर एक्सीडेंट होता है, तो क्विकली क्या होता है, आप कहीं पर भी 100 डायल, हमारे यहाँ जैसे एमपी में है और भी राज्यों में अलग अलग है, इमरजेंसी कॉल से है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी फैसिलिटीज है जहां पर आपको जो 90% लोग जिनको कॉमन कहते हैं, है ना, तो वो उनको भी इनका फायदा मिलने लगा है। तो टेक्नोलॉजी मतलब एक समय तक जिसको, जो केवल सक्षम वर्ग है, जो केवल
कारपोरेट या कैपिटलिस्ट है, पूंजीपति है, उन तक सीमित था। लेकिन आज के दौर में टेक्नोलॉजी लगभग हर व्यक्ति, हर इंसान तक पहुंच गई है, क्योंकि हर एक का डाटा टेक्नोलॉजी में कैद है। तो खैर, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, और ये जब लिखा गया, ये जो कॉन्सेप्ट जब लिखा गया उस दौर में क्या है, उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, मतलब उतनी डेवलप्ड नहीं थी। गिनती के लोगों के पास था। यहाँ तक कि आप 2005 6 2005 6 7 तक की बात कर रहे होंगे, व्हेन आई रिमेम्बर वेरी वेल। 2005 6 के है ना, आज से लगभग 20 ईयर्स एगो आप कह लो, जस्ट बिफोर 20 to 15 ईयर्स एगो, लेट मी टेल यू। आप आश्चर्य करोगे, गिनती के लोगों के पास में कंप्यूटर हुआ करते थे। लेकिन आज, आज बच्चा बच्चा जानता है, बहुत सारी चीजें आपको मिल रही है। यहाँ तक कि आपका जो मोबाइल एंड्रॉइड फोन है वो भी कंप्यूटर का काम कर रहा है। सो टेक्नोलॉजी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, एंड इट इज बीइंग यूज्ड बाय ऑल ऑफ द कॉमन पीपल आल्सो, या मास पीपल ऑफ द सोसाइटी। ठीक है। इट इज हाईली इकोनॉमिकली एंड आइडियोलॉजिकली motivated and ultimately performs a significant role in altering human understanding, and also construct the stereotypical image of women, men, good, bad, black and white. Sunil, I will tell you, I will answer you, है ना? ठीक है, I have to come to know about it. Exactly, I don't know, and but I will come to know, and then I will let you inform. ठीक है? Okay. तो ये क्या है? बिकॉज कोई जानकारी किसी चीज की नहीं है तो उसको हाँ बताना ठीक नहीं है, पूरी तरह से संतुष्ट होना चाहिए। तो ये देखिए, स्टेट ऑफ इमेज ऑफ मेन, गुड, बेड, ब्लैक, वाइट, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये बनाने में टेक्नोलॉजी का बेहद बड़ा रोल है। आप देखिए, कोई मार्केट में कोई चीज, कोई भी आप लेने जाते हैं गुड्स, है ना, मान ले आप सिंपल कोई भी वेपर्स ले लीजिए, चिप्स ले लीजिए, है ना, या आप जाइए, देखिए क्या हो रहा है। एक छोटा सा केवल 5 रुपीज का उसका वो छोटा सा मान ले पैकेज मिलता है, लेकिन उसको मतलब बड़े बड़े स्टार उसको जो है एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। आप सोचिए, 1 करोड़ रुपए से तो कम ज्यादा लेता हूँ। मतलब कोई चीज मान लो 5 रुपीज की बिकती है, और उसका एडवर्टीजमेंट, मतलब कोई प्रोडक्ट 5-10 रुपीज भी, मिनिमम 5 रुपीज मान ले। कोई भी एक चिप्स का पैकेट ले लीजिए, वो चिप्स के पैकेट को जो एडवर्टीजमेंट कर रहा है, वो कम से कम, जो स्टार कर रहा है वो 1 करोड़ लिया होगा। उसको बनाने के लिए कैमरा, है ना, उसको फैसिलिटेट करने के लिए फिर हमको दिखाया जा रहा है, जहां से जिस चैनल के माध्यम से दिखाया जा रहा है उसने पैसा लिया होगा। सोचिए, करोड़ों रुपए का खर्चा होता है ना। तो ये क्या कर रही है? आपकी इमेज, उस प्रोडक्ट की इमेज बना रहा है, उसको गुड बैड में, है ना, कैसा है उसकी इमेज बना रहा है। तो टेक्नोलॉजी आज की तारीख में वो यही कह रहे हैं कि ये नेचुरलाइज करता है। आई होप, आई थिंक यू अंडरस्टैंड बेटर। ठीक है, समझ में आ रहा है ये सर? नो क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। People passively perceive the cultural context that gave birth to political passivity and intellectual inactivity, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या है, पैसिविटी का मतलब है इनडायरेक्टली, है ना, हम एक्टिव ना होकर के, इनएक्टिव होकर के ऑटोमेटिकली उसको क्या करते हैं, ग्रास्प करते हैं, परसीव करते हैं। समझ में ना? ठीक है, बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली होते चले जाती हैं, है ना, टेक्नोलॉजी के इस दौर में। आपको आदत डाल, आप जैसे मान ले कुछ समय तक 2013 के 2010 11, है ना, के बाद आधार कार्ड आया। अब नाउ यू हैव बिकम वेरी हैबिचुअल, है ना। टेक्नोलॉजी ने आधार कार्ड लॉन्च किया, हर एक व्यक्ति का होना चाहिए, हर एक नागरिक का, सॉरी व्यक्ति का नहीं, भारत के हर नागरिक का होना चाहिए। अब क्या हुआ, धीरे 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 इस टेक्नोलॉजी ने उस आधार कार्ड को क्या कर दिया, नेचुरल कर दिया। लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। लोगों की एक धारणा बन गई है कि सब व्हेनेवर वेयर एवर यू हैव टू अप्लाई फॉर एनीथिंग एल्स, यू नीड आधार कार्ड। एम आई राइट? अब समझ में आया कुछ मैं बताना चाह रहा हूँ? टेक्नोलॉजी ने क्या करा, टेक्नोलॉजी ने, है ना, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी आधार कार्ड हैज बीन क्रिएटेड, and now the people of India, not people, citizen of India, we are well aware that, and if we have to apply anywhere else, and Aadhaar card is necessary, number one. Yes or no? So this is, अब नेचुरली लोगों ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया उसको कि हाँ आधार कार्ड चाहिए भैया। ठीक है, तो ये उसके उसके बिना कोई आधार नहीं है ना। तो ये सारी चीजें। For the Frankfurt Group, Marx's conceptualization and theorization of capitalism overlooked this process, and for them, this is the focal reason for why revolution never come. और अब देखिए,
रिवोल्यूशन नेवर, कब क्रांति कभी नहीं आएगी, क्यों भाई? कोई भी जो एक्टिविटीज हो रही है उसको नेचुरल बना दिया। लोग आसानी से नहीं, कोई भी बात को एक समय के बाद में धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना। जैसे कोई भी टेक्नोलॉजी ने, मान ले बहुत सारे जो डिसीजन लिए जाते हैं सरकार के द्वारा, है ना। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा डिसीजन, स्टूडेंट सुनिए, हमारे सम्मानीय मोदी जी के माध्यम से उन्होंने डिजिटल इंडिया का जो है कॉन्सेप्ट दिया, और फिर डिजिटल आप कह सकते हैं डिजिटल ट्रांजेक्शन के ऊपर जोर दिया। यकीन मानिए, एक समय था लोगों को फोन पे, गूगल पे चलाना नाम नहीं सुना था। चलाना तो दूर की बात है, लेकिन जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बनी, टेक्नोलॉजी ने उसका माहौल बनाया, क्या हुआ? आप आज की तारीख में देखिए, इवन अ चाइल्ड इज हैविंग फोन पे, गूगल पे एंड अदर ऑप्शन ट्रांजेक्शन, है ना। यस आर नो? एम आई राइट? नाउ इट हैज बिकम नेचुरल, नाउ वी आर एक्सेप्टिंग एज इजीली। अच्छा, कैश नहीं है, यस, फोन पे, गूगल पे। Am I right? Am I right? Yes or no? Now it has become, this is also the part of our culture and society. I hope you understand better. है ना। तो नाउ इट हैज बिकम, मतलब नेचुरल। कोई अब किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं है। पहले लोग विश्वास नहीं करते थे, पैसा कट जाएगा ये, है ना। शुरू शुरू में ऐसा बहुत सारे कॉन्सेप्ट चलते थे, नहीं इसमें तो पैसा कट जाता है, फंस जाता है, क्या होगा, है ना। केवल एक आप सोचिए, सिर्फ मोबाइल नंबर डालने से आपको पेमेंट ट्रांसफर हो रहा है, यानी आपका मोबाइल नंबर भी आपका अकाउंट है। इनडायरेक्टली आपके कितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, क्या हो रहा है, मोबाइल से भी पता चल रहा है। एवरीथिंग, आपकी कोई भी जानकारी लुका छिपी वाला काम ही नहीं है। हाँ, तो बिल्कुल हम उस दौर में हैं जिस दौर में बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। देर आर बिग चेंजेस हैपनिंग इन द सोसाइटी। देर आर बिग चेंजेस हैपनिंग इन द सोसाइटी। तो ये बिल्कुल हमने वो दौर, बिल्कुल ये 2G से 4G है, 2G से 3G 4G, अब 5G, है ना, 6G पे जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये ट्रांसफर है ना, ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है, ये ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। हम उस दौर में, हमने उस दौर को भी देखा, इस दौर को भी देखा, नए दौर को भी देख रहे हैं। आने वाली पीढ़ियों को हम बताएंगे कि ऐसा भी होता था कि एक मूवी को डाउनलोड करने के लिए रात में ऑन का, है ना, डाउनलोडिंग पे छोड़ो, सुबह तक डाउनलोड होती थी। कोई भरोसा नहीं करने वाला है, मिनटों में, यहाँ तो सेकंड में हो जाती, मिनटों में होती है। ये दौर होता है, बदलते दौर के साथ हम लोग चल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो प्रिसाइसली फ्रैंकफर्ट स्कूल क्या कहता है? He was a group of scholars known for developing critical theory। ये जो जितने भी विचार इन्होंने रखे, ये सब क्या है? ये सब क्या है? क्रिटिकल थियरीज एंड popularizing the dialectical method of learning by interrogating the contradictions prevalent in our society। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे अभी जो हम, ये हमारा रिवीजन भी था, थोड़ा सा कल्चरल स्टडीज में आपको अंदर ले जाने के लिए एक बार अच्छे से पढ़ाना भी जरूरी था। रेमंड विलियम्स 1921 और 1988 में इनकी डेथ हुई। आप देखिए 1921 में इनका जन्म हुआ है ना। तो यहाँ पर क्या है इनके बारे में देखते हैं, रेमंड विलियम्स के बारे में देखिए। ऑल्दो रेमंड विलियम्स वाज द लीडिंग मार्क्सिस्ट थिंकर, एक्चुअल में थे तो ये मार्क्सिस्ट थिंकर, कार्ल मार्क्स को मानने वाले, है ना। एक बार जाके आप लोग जो है कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ लेना, बहुत बड़े थिंकर हैं। तो है तो ये मार्क्सिस्ट थिंकर, लेकिन अपने आप को नहीं, अपने आप को कुछ और कहलाते हैं। देखते क्या है, एंड क्रिटिक हु मेड अ रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन टू मार्क्सिस्ट, यानी मार्क्सवाद में इन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है ना। मार्क्सिस्ट लिटरेरी थ्योरी, है ना। ही नेवर कॉल्ड हिमसेल्फ अ मार्क्सिस्ट, है ना, उन्होंने लेकिन खुद को कभी नहीं कहा मार्क्सिस्ट, बट प्रीफर्ड टू बी कॉल्ड अ सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? रेमंड विलियम्स क्या है? है तो मार्क्सिस्ट। मार्क्सिस्ट का मैंने आपको विचारधारा वही है जो बुर्जुआ और ये कैपिटलिस्ट की जो बात हो रही है वही है, मार्क्सिज्म है ना। द्वंद्ववाद है, भौतिक द्वंद्ववाद है ना, ये सारी चीजें। तो इसमें वो क्या है, वो अपने आप को मार्क्सिस्ट नहीं कहते हैं, वो अपने आप को क्या कहते हैं, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट के रूप में अपने आप को मानते हैं, ठीक है। तो ये देखिए एक्समल,
चलिए, ओके, ठीक है। आई होप ठीक लग रहा, समझ में आ रहा ना? अब आज थोड़ा सा क्लियर हुआ ऋतु, सुनील? यस आर नो? नाउ इट्स क्लियर। मुझे लग रहा है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए, His work can be conveniently placed under Marxist tradition। अच्छा, मैं एक बात और बताऊं आपको। हम्म, देखिए, मेरे इस प्लेटफॉर्म पर मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, और ना ही किसी की बुराई कर रहा हूं, है ना? सारे लोग अच्छा पढ़ाते हैं, सब अच्छे हैं। आई ऑलवेज सपोर्ट एवरी टीचर। लेकिन एक बात यहाँ बता रहा हूँ कि मेरे इस प्लेटफॉर्म पर, हमारे ये जो फिलर फॉर्म का प्लेटफॉर्म है, जो मैं क्लासेस ले रहा हूँ, स्टूडेंट आपको पहली यूनिट से लगा के पूरी ऑल 10 यूनिट्स टू द पॉइंट, टॉपिक वाइज आपको पूरी मिलती है। रेयर केसेस में आपको कहीं पर कुछ मिलेगा, कहीं पर कुछ मिलेगा, है ना? कहीं पर आधा अधूरा मिलेगा, एक वीडियो मिल गया, ये हो गया, या थोड़ा बहुत मिल गया। ऐसा नहीं, आपको एक सीरीज में पूरा पूरे पूरी सारी क्लासेस एक सीरीज में मिल रही है। आप कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर देखिए, इतनी फैसिलिटी नहीं है। आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती, सब कुछ मिलता है। तो हम लोग का ये जो प्रयास है हमारा, है ना, बेस्ट कंटेंट देने को। और आप देखिए, बहुत सारी चीजें आपको बहुत शानदार पीपीटी के माध्यम से, ये भी नोट्स से ही है, आप इनको नोट्स अपने स्तर से और लिख लो तो बढ़िया है। इसी को आपको नोट्स फॉर्म में मिलता है ना? जो आप यहाँ पर पीपीटी में देखते हैं, उसी का थोड़ा सा ये शॉर्ट है, और वहाँ थोड़ा सा नोट्स में डिटेल में है ना? कुछ नोट्स अभी अपलोड करना बाकी है, व्यस्तता के कारण कर नहीं पाया मैं। बिल्कुल, अभी मैं एक आज आज प्रयास करता हूँ, आज हो जाए, ठीक है। आइए देखते हैं रेमंड विलियम्स के बारे में आपको। देखिए, his work can be conveniently placed under Marxist tradition। मतलब कुल मिला के जो रेमंड विलियम्स है, वो मार्क्सिस्ट है। वो खुद को सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट भले कहलाते हैं, लेकिन मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन के अंतर्गत उनके जो वर्क है ना, उनको रखा जा सकता है। विलियम्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रपोजिंग द आइडिया ऑफ कल्चरल मटेरियलिज्म। ये देखिए, जरूर याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल्चरल मटेरियलिज्म क्वेश्चन बन सकता है। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल मटेरियलिज्म? सो रेमंड विलियम्स ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल मटेरियलिज्म। क्या होता है कल्चरल मटेरियलिज्म? बिल्कुल क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ से सीधा सीधा उठा के क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। कितना बेहतरीन इफेक्ट, आप देखिए, हर पॉइंट में आपको क्वेश्चन बनेगा, हर पॉइंट में, है ना? कल्चरल मटेरियलिज्म इज बेसिकली अ मार्क्सिस्ट अप्रोच। देखिए, हम लोग जब एमसीक्यू करेंगे तब करेंगे, लेकिन बीच में मैं प्रयास कर रहा हूँ कि 10 तारीख के बाद में जैसा भी जितनी यूनिट हुई है उसका, है ना, कुछ क्वेश्चन लेकर के हम एमसीक्यूज वाला एक आध क्लास में अभी डालूं, क्योंकि वो भी जरूरी है। ठीक है, चलो। तो कल्चरल मटेरियलिज्म इज बेसिकली अ मार्क्सिस्ट अप्रोच। क्या है ये? पहली बात तो ये क्या है, टू लुक एट द कल्चर, है ना? यानी मार्क्सिस्ट दृष्टिकोण से क्या है? किसको देखना? कल्चर को देखना। एंड इट्स इम्पैक्ट, और इसका प्रभाव ऑन सोशल रिलेशंस एंड आइडियोलॉजिकल मोटिव्स, है ना? ये देखिए भाई, एक नया कल्चर डेवलप हुआ, इकोनॉमिक कल्चर डेवलप हुआ, जिसमें हमने देखा कि, है ना, जो जिनके उत्पादन के साधन के ऊपर जिनका ज्यादा हक है, ठीक है, और एक मजदूर वर्ग हो गया मान ले, तो यहाँ पर एक नए सोशल रिलेशंस डेवलप होंगे। यानी जिसका उत्पादन के साधनों पर ज्यादा हक है, प्रोडक्शन के साधनों पर ज्यादा हक है, यानी यहाँ पर हम जो इकोनॉमिक पार्ट है, जो कल्चर का इकोनॉमिक पार्ट है, वो क्या कर रहा है? सोशल रिलेशंस पर, आइडियोलॉजिकल पर, यानी जो ट्रेडिशन है, कस्टम्स है, उसके ऊपर क्या है? एक अलग प्रभाव डालता है। तो इसी को उन्होंने नाम दिया है कल्चरल मटेरियलिज्म। यानी कल्चरल जो भी एक्टिविटीज हो रही है, वो हमारे सामाजिक ताने बाने को, हमारे वैचारिक, हमारे जो सैद्धांतिक ताने बाने को क्या है? प्रभावित करती है। ठीक है। यस, वाओ, वेरी नाइस। स्टेट एग्जाम, हाँ, ये स्टेट, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। कॉन्ग्रेचुलेशन, मेनी मेनी, है ना? आई पास्ड बिहार स्टेट एग्जाम, वाओ, वेरी नाइस। सुनील जी, बहुत अच्छा। सो सेंड मी मैसेज सुनील,
है ना, सेंड मी, शेयर मी मैसेज। ठीक है, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन सुनील। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। वेरी नाइस, है ना, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन ऑन बिहाफ ऑफ मी एज वेल एज ऑन बिहाफ ऑफ फिलर फॉर्म। ठीक है, चलिए बहुत बहुत आपको बधाई। आपने इतनी बड़ी एग्जाम पास करी, उम्मीद करते हैं कि आप बहुत जल्द जॉब में आ जाए। ठीक है, चलिए। फॉर विलियम्स, यहाँ देखिए, फॉर विलियम्स कल्चर इज नथिंग। ये देखिए विलियम्स के लिए क्या है, कल्चर इज नथिंग बट अ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ये देखिए, मैंने क्या बोला अभी आपसे कहा, मतलब आज की तारीख में क्या हो रहा है, आज टुडे इन दिस सब कुछ प्रोडक्शन है। और मैं हमेशा मेरे विद्यार्थियों को भी कहता हूं, अपनी इनकम पर, अपने प्रोडक्शन पर, अपने उसके ऊपर वैल्यू करिए। क्योंकि जितना आप जो मतलब दुनिया को क्या आप दे सकते हैं, क्या सेल कर सकते हैं, अपनी स्किल हो सकती है, ऐसी कोई बात हो सकती है। अभी जैसे मैं आपके बीच में आ रहा हूँ तो कुछ ना कुछ मैं आपको सेल कर रहा हूँ, मेरी स्किल, मेरी टीचिंग, ये सब क्या कर रहा हूँ, मैं आपको सेल कर रहा हूँ। तो ये जो है, ये क्या है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, यही क्या है, उन्होंने कल्चर का नाम दे दिया। मतलब ये देख, कल्चर अकॉर्डिंग टू विलियमसन क्या है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। सीधा विलियमसन तो सिर्फ, वेरी नाइस वेरी नाइस, विलियमसन से भी कहते हैं जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कल्चर का पार्ट है, वही कल्चर है उनका, तो ये कहना। Thus, cultural materialism is an extension of the class-based analysis of traditional Marxism। ये देखिए, जो बात मैंने आसानी से कही वो यहाँ कह दी। Thus, cultural materialism is extension of class-based analysis of traditional Marxism। Class-based मतलब क्लास यहाँ क्या है, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, ये क्लास बेस्ड स्टडी है, उसी का एक तरीके से क्या है, एक्सटेंशन है। वो क्या, कल्चरल मटेरियलिज्म, क्लास बेस्ड एनालिसिस ऑफ ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म का क्या है, ये एक्सटेंशन है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, क्लियर है। तो अकॉर्डिंग टू रेमंड विलियम्स, जो कल्चर है, वो कल्चर वो किसको मानते हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि आप अगेन लेट मी रिमाइंड यू, means of production is the source of, it is a source of formation of the society, है ना, आप यहाँ पर कह सकते हैं। तो बिल्कुल आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि रेमंड विलियम्स के विचार आपको समझ में आए होंगे। एम आई राइट, अंडरस्टैंड, यस और नो। चलिए आगे देखते हैं, कल्चर एंड सोसाइटी। ये देखिए, ये रेमंड विलियम्स का ही आगे पढ़ चल रहा है ना। कल्चर एंड सोसाइटी, द लॉन्ग रिवॉल्यूशन, कम्युनिकेशन, है ना, टेलीविजन, ये देखिए, टेक्नोलॉजी एंड कल्चरल फॉर्म towards 2000 and Marxism and literature are some of his key texts of Raymond Williamson, where he has explored the relationship between culture and class। तो इनके वर्क क्या क्या है, पहला है ना, कल्चर एंड सोसाइटी, दूसरा द लॉन्ग रिवॉल्यूशन, नेक्स्ट कम्युनिकेशन, नेक्स्ट टेलीविजन, टेक्नोलॉजी एंड कल्चरल फॉर्म, है ना, टुवर्ड्स 2000 एंड मार्क्सिज्म एंड लिटरेचर, टुवर्ड्स 2000 एंड मार्क्सिज्म एंड लिटरेचर। ये सब क्या है, ये उनके कुछ वर्क हैं। ठीक है, ये कुछ वर्क हैं, ये कल्चर और क्लास को दिखाते हैं, है ना, रेमंड विलियम्स। आइए देखते हैं एक बार फिर से इनके वर्क क्या है। रीडिंग एंड क्रिटिसिज्म 1950 में पब्लिश हुआ है। ड्रामा इन परफॉर्मेंस 1954 में। कल्चर एंड सोसाइटी 1958 में, ऊपर भी इसका जिक्र आया है। ब्रॉडर काउंट्री, ब्रॉडर कंट्री 1960। ब्रॉडर कंट्री कॉन्सेप्ट ही देखिए आप, क्योंकि मार्क्सिज्म की विचारधारा से प्रभावित है तो यही आना है। आपने कार्ल मार्क्स को एक बार जरूर समझना, एक बार कहीं ना कहीं से जरूर पढ़ना। हमारे यहाँ पर सिर्फ केवल उनकी थ्योरी पढ़ने में आ रही है, आप कार्ल मार्क्स को एक बार जरूर पढ़ना तो ये समझ में आ जाएगा। द लॉन्ग रिवॉल्यूशन 1961 में। मॉडर्न ट्रेजेडी 1966 में, मॉडर्न ट्रेजेडी। कम्युनिकेशंस 1966। ड्रामा फ्रॉम इब्सन टू ब्रेक, है ना, ब्रेक 1968 में। ड्रामा फ्रॉम इब्सन टू ब्रेक 1968 में। द इंग्लिश नोवेल फ्रॉम डिकन्स टू लॉरेंस, ये देखिए, द इंग्लिश नॉवेल फ्रॉम डिकन्स टू लॉरेंस 1970। स्टूडेंट सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वर्क बहुत पूछते हैं एग्जाम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में,
ठीक है, ये क्रोनोलॉजी आपको इस तरीके से व्यवस्थित याद रखना है। जॉर्ज ऑरवेल 1971 में जरूर याद रखना, जॉर्ज ऑरवेल जो स्वयं एक राइटर है ना, उनका इन्होंने उनके बारे में लिखा है। द कंट्री इन द सिटी 1973, मार्क्सिज्म इन लिटरेचर 1977, कल्चर एंड मटेरियलिज्म 1980। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी के ऊपर कॉन्सेप्ट भी है ना, इसी के ऊपर कॉन्सेप्ट भी है, तो याद रखना है आपको। कल्चर एंड मटेरियलिज्म, प्रॉब्लम्स इन मटेरियलिज्म एंड कल्चर 1980, प्रॉब्लम्स इन मटेरियलिज्म एंड कल्चर 1980, लैंग्वेज एंड लिटरेचर 1981, लैंग्वेज एंड लिटरेचर 1981, द सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर 1982, द सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर 1982, राइटिंग इन सोसाइटी 1983, towards 2000 1983 और द ईयर 2000 1983। देखिए लिखा कब है ये ध्यान रखना, 1983 में लिखा उन्होंने टुवर्ड्स द सोसाइटी, और द ईयर 2000 1983, ये भी 1983 में लिखा है। आपने जैसे हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम में है ना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने 2005 या 4 में लिखा था विजन टू 2020, विजन 2020 है ना, उनकी बुक भी है ना। तो उनका जो 2020 का विजन था, बहुत सारे उनके विजन आप जब बुक पढ़ेंगे तो आप विश्वास नहीं करोगे, बहुत सारे उनके विजन आज पूरे हुए हैं। मतलब ये देखिए दूरदर्शी होते हैं, ये जो लीडर होते हैं ये दूरदर्शी होते हैं, जो लिखते हैं क्या होगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। लॉयल्टी इज 1985, पीपल ऑफ द ब्लैक माउंटेन्स 1989, पीपल ऑफ द ब्लैक माउंटेन्स 1989, मार्क्स ऑन कल्चर 2005 में है ना, मार्क्स ऑन कल्चर। तो ये देखिए आप, ठीक है। आइए हम देखते हैं, एक सेकंड है ना। ये बाद में मुझे लग रहा है, ये बाद में पब्लिश हुआ होगा क्योंकि इनकी डेथ हो चुकी थी, है ना, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, पोस्ट मतलब डेथ के बाद भी पब्लिश होता है। स्टुअर्ट हॉल, इनको पढ़े बिना कल्चरल स्टडीज अधूरी है, ब्रीफली हम इनको देख रहे हैं। ठीक है, स्टुअर्ट हॉल, आइए देखते हैं इनके क्या हाल चाल है। ठीक है, चलिए। अब देखिए स्टूडेंट, एक बात और है, हम इसमें देखें, ऑनलाइन क्लास की खास बात ये है, और ऐसा अगर व्यवस्थित कंटेंट हो तो हमारा टाइम पास नहीं होता है। मैं केवल जो हम देखते हैं कि केवल लेक्चर जो हम सुनते हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कंटेंट भी मिल रहा है। बाद में आप रिवीजन कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। जैसा a British Dominican Marxist, sociologist, professor, and theorist Stuart Hall launched New Left Review in 1960। क्या क्या है, पहली बात तो ये ब्रिटिश जमैकन मार्क्सिस्ट है, यानी ब्रिटिश जमैकन ये रहने वाले हैं, ब्रिटेन जमैका के। और ये क्या है, ये मार्क्सिस्ट है, सोशियोलॉजिस्ट है ना, प्रोफेसर और थियोरिस्ट। इन्होंने क्या लॉन्च किया, न्यू लेफ्ट रिव्यू, न्यू लेफ्ट रिव्यू इन 1960, विच वाज अ ब्रिटिश एकेडमिक जर्नल। ये क्या था, ये बिल्कुल याद रखना, न्यू लेफ्ट रिव्यू। और ये क्या था, ये ब्रिटिश एकेडमिक जर्नल है ना, ब्रिटिश एकेडमिक जर्नल, एंड डिस्कस द इकोनॉमी, पॉलिटिक्स एंड कल्चर। ये देखिए, ये है ना, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स एंड कल्चर। न्यू लेफ्ट रिव्यू, इट इज अ ब्रिटिश एकेडमिक जर्नल, है ना, ये ध्यान रखना। He was also involved in the Black Art movement। ये देखिए, the Black Art movement क्या है, Black Art movement student, let me tell you, in South, uh, in India you can say there is a division based on casteism, है ना, है ना। आप देखेंगे भारत में जैसे हम देखते हैं, जाति के आधार पर कहीं ना कहीं डिवीजन दिखाई पड़ता है, वर्ण के आधार पर दिखाई देता है। आप वेस्टर्न कल्चर में, वेस्टर्न में आप जाओगे तो वहां पर आपको ब्लैक एंड व्हाइट ज्यादा मिलेगा, है ना, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक अपनी स्किन के आधार, कलर बेस्ड रेसिज्म बोलते हैं उसको, कलर के आधार पर, रेसिज्म के आधार पर। तो यहाँ पर क्या है, द ब्लैक आर्ट मूवमेंट में ये इन्वॉल्व है ना, ये इन्वॉल्व रहे हैं। ब्लैक आर्ट मूवमेंट में क्या था, आप सोचिए सदियों तक ब्लैक जो स्किन के जो हमारा जो ब्लैक स्किन के जो भाई बंधु हैं, जो लोग हैं, उनको कहा गया कि आप है ना, आप मतलब बड़ा काम नहीं कर सकते, उनको अवसर नहीं मिला, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सब कुछ। लेकिन धीरे से क्या हुआ, जो
ब्लैक स्किन या कलर्ड लोग हैं, उन्होंने अपने आप को क्या है, गौरव से भर दिया। वो अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगे कि वी आर द सुपीरियर एज अ ह्यूमन बीइंग, चाहे वो ब्लैक हो व्हाइट हो, सब सुपीरियर है। तो यहाँ पर क्या है, ब्लैक जो है, ब्लैक आर्ट है, यानी उन्होंने अपनी आर्ट को, अपनी कला को, अपने आप को श्रेष्ठ मानना शुरू किया। इसी को ब्लैक मोमेंट, यानी उनको उन्होंने ब्लैक आर्ट मोमेंट है, यानी क्या करते हैं, जैसे व्हाइट है, व्हाइट अपने आप को क्या नेचुरली क्या मान रहे हैं, वो अपने आप को श्रेष्ठ मान रहे हैं। तो सेम क्या है यहाँ पर, मतलब एक कहीं पर भी, चाहे कास्टिज्म के आधार पर एक वर्ग अपने आप को श्रेष्ठ मानता है ना। एक, तो यहाँ पर, यहाँ जो ब्लैक आर्ट मूवमेंट है वो भी क्या था, जो व्हाइट अपने आप को श्रेष्ठ मान रहे हैं, यहाँ पर जो ब्लैक कलर्ड जो लोग हैं, यानी जिनकी ब्लैक स्किन है, देखो ब्लैक है व्हाइट है सब बढ़िया है, तो वो भी अपने आप को यस ओके। सो ब्लैक आउट समझ में आया आपको। आप देखेंगे नेल्सन मंडेला का एग्जांपल आप देखिए, है ना, साउथ अफ्रीका में लगभग अप्रोक्सीमेटली 30 इयर्स, 30 साल लगभग वो कैद रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका का गांधी उनको कहते हैं, है ना। 30 इयर्स तक वो कैद रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि जो अपना जो वहां पर जो ब्लैक एंड व्हाइट का जो भेदभाव था उसको मिटाने के लिए हजारों लोगों की वहां पर डेथ हुई है। तो फिर बाद में आप देखेंगे आगे चल के, फिर वहाँ की जो कंट्री के लोग हैं उनको रियलाइज होता है कि हम ब्लैक जो लोग हैं वो भी हमारे भाई हैं, हमारे अपने देश के हैं, उनके साथ में हम ठीक नहीं कर रहे हैं। तो बाद में फिर आप देखेंगे जो नेल्सन मंडेला है वो आगे चल के दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी बनते हैं। और आपको बता दें, भारत में उनको क्या भारत रत्न भी दिया गया है। ठीक है, नेल्सन मंडेला, है ना, मदर टेरेसा, है ना, तो ये कुछ हैं जिनको भारत रत्न मिला हुआ है। आप देख सकते हैं, पढ़िए। तो ब्लैक आर्ट मूवमेंट क्या है, थोड़ा सा मैंने ब्रीफ में एक बार बता देता हूँ। द ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट बीएम वाज एन अफ्रीकन मूवमेंट, है ना, ये क्या है, अफ्रीकन है बिल्कुल, है ना, क्योंकि ज्यादातर वही है ब्लैक या कलर्ड लोग। led art movement that was active during the 1960 art movement that was active during the 1960s and 1970s through activism and art, है ना। जो ब्लैक थ्रू एक्टिविज्म एंड आर्ट, ब्लैक आर्ट मूवमेंट क्रिएटेड न्यू कल्चरल इंस्टीट्यूशंस एंड कन्वेड अ मैसेज ऑफ ब्लैक प्राइड। ये ध्यान रखना, इन्होंने अपने इंस्टीट्यूशंस बनाए, इन्होंने अपने कल्चरल इंस्टीट्यूशंस बनाए, इन्होंने बनाए, नए बनाए, या जो इनके अपने पुराने ट्रेडिशन थे उनको श्रेष्ठ बनाना शुरू किया। यानी ब्लैक प्राइड की बात करी, काले गौरव की बात करी उन्होंने, अश्वेत गौरव इसको हम कहते हैं, ब्लैक प्राइड, यानी वी आर आल्सो द सुपीरियर एज अ ह्यूमन बीइंग। भगवान ने कलर चेंज किया लेकिन दिमाग वही है, सोच वही है, सब कुछ है। तो यहाँ पर क्या है, ब्लैक प्राइड की बात करें, आप सिर्फ ये देख लो, ब्लैक आर्ट मूवमेंट 1960 से 70s के दौर में अफ्रीकन अफ्रीकन अमेरिकन, अफ्रीकन अमेरिकन देखिए कहाँ कहाँ पर है, अफ्रीका में भी और अमेरिका में भी। आप देखिए अमेरिका में भी, आप देखिए बराक ओबामा, अमेरिका के इतिहास में बराक ओबामा पहले क्या है, ब्लैक राष्ट्रपति हुए। मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग, है ना, जूनियर किंग, मार्टिन लूथर किंग, ये दुनिया के गांधी जी, है ना, ये दुनिया के महानतम बड़े मानवतावादी हैं, है ना। इसी तरीके से भारत में भी आप कास्टिज्म को लेकर के कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो दौर आया है उसमें बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का योगदान आप देख सकते हैं। तो ये कुछ है जो क्लास डिवीजन के आधार पर अलग अलग देशों में, अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग आए, यहाँ पर गांधी जी, बाबा साहेब आए। इधर आप देखेंगे तो ब्लैक प्राइड में आपको नेल्सन मंडेला दिखाई देंगे, है ना, अफ्रीका में, इस तरीके से। तो ये ब्लैक आर्ट मूवमेंट को आप सिर्फ इतना जान लीजिए, ये ब्लैक प्राइड की बात करता है। ब्लैक प्राइड यानी उनके अपने कल्चरल इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने एस्टेब्लिश किया है, दूसरे जो व्हाइट के द्वारा एस्टेब्लिश है उसको नकार दिया है। ठीक है, यानी आई थिंक यू अंडरस्टैंड इज वेरी वेल। एट द बिगिनिंग ऑफ हिज करियर, Hall worked on the popular arts and situating, ये देखिए, Hall worked on the popular arts, situating marks, evolutions and departures, economic and encoding and decoding in television, discourse, policing the crisis and resistance to rituals। ठीक है, तो यहाँ पर सब दूर उन्होंने क्या किया है, काम किया है ना।
इन हिज वर्क हाल propounded these theories of art and culture। ठीक है, तो वर्कड ऑन इन्होंने, सॉरी इन्होंने क्या क्या इनके वर्क, ये देखिए आप, इस द पॉपुलर आर्ट सिचुएटिंग मार्क्स इवोल्यूशंस एंड डिपार्चर्स, सारे आइए इनके कुछ वर्क भी होंगे। ये देखिए सिचुएटिंग मार्क्स इवोल्यूशंस एंड डिपार्चर्स 1972 में आया है। डिकोडिंग एंड डिकोडिंग इन द टेलीविजन डिस्कोर्स 1973 में है, ये भी 1972 1973। रेजिस्टेंस थ्रू रिचुअल्स 1975 में है। पॉलिसिंग द क्राइसिस 1978। द हार्ड रोड टू रिन्यूअल 19। अब देखिए इनके टाइटल से आप पता लगाइए किस तरीके से, हार्ड रोड टू रिन्यूअल 1988, फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्निटी 1992, क्वेश्चन ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी 1996, कल्चरल रिप्रेजेंटेशन एंड सिग्निफाइंग प्रैक्टिसेस 1997, फैमिलियर स्ट्रेंजर, अ लाइफ बिटवीन द टू आइलैंड 2017 में, अ मेमोयर पोस्टमोस्टली पब्लिश्ड, पोस्टमोस्टली मतलब उनकी डेथ के बाद में पब्लिश हुआ है मेमोयर। फैमिलियर स्ट्रेंजर, अ लाइफ बिटवीन द टू आइलैंड्स 2017। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट, है ना, इट इज द बेस्ट पार्ट। समझ में आया? यस आर नो? यस आर नो? आई होप यू अंडरस्टैंड। ये सारे टाइटल्स को आप बार बार देखें, समझ में आ जाएगा। ठीक है, वाल्टर बेंजामिन आप देखिए, वाल्टर बेंजामिन 1982-1940। तो वाल्टर बेंजामिन वाज अ कल्चरल क्रिटिक एंड रिमार्केबल एसेइस्ट फ्रॉम जर्मनी। ये देखिए, थोड़ा सा हम ये दो तो हमने पढ़ लिया, लेकिन ये थर्ड हमारे जो थिंकर है उसको भी हम देखते हैं। वाल्टर बेंजामिन वाज अ कल्चरल क्रिटिक एंड रिमार्केबल एसेइस्ट फ्रॉम जर्मनी। ज्यादातर आप देखेंगे कार्ल मार्क्स भी जर्मनी के उधर ना, वहां पर ये कल्चरल को लेके ज्यादा। ही वाज अ मेंबर ऑफ फ्रैंकफर्ट स्कूल। Frankfurt School, again, let me remind you, whom you can say basically related with Marxism. Benjamin was best known for his famous essay, ये जरूर याद रखना, ऐसे महत्वपूर्ण है इनका एक essay है, the work of in the age of mechanical reproduction, the work of in the age of mechanical reproduction, that examines among the other ideas the political uses of mass production of art। ये देखिए क्या है, क्या इसमें क्या है, among the other ideas the political uses of mass production of art। बिल्कुल मास प्रोडक्शन ऑफ आर्ट है ना। आज देखेंगे आप मैकेनिकल मशीनीकरण के द्वारा कितना उत्पादन हो रहा है, मशीन का जो आविष्कार हुआ है। उद्योग धंधों में आप देखिए आज एक मशीन, है ना, हजारों लोगों का काम करती है ना, जितना 1,000 लोग नहीं कर पाते उतना एक मशीन फटाफट कहीं कम से कम समय में कर देती है। तो उसका पॉलिटिकल यूज कैसे हो रहा है, अगेन लेट मी रिमाइंड यू, जिसके पास में मशीन है वो पॉलिटिकली पावरफुल हो जाएगा। एग्री और नॉट? यस आर नो? ठीक है, इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, देखते हैं क्या क्या है। द टास्क ऑफ द ट्रांसलेटर 1923 में, द वर्क ऑफ आर्ट इन द एज ऑफ मैकेनिकल रिप्रोडक्शन 1935 में, थीसिस ऑन द फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री 1940 में, ऑथर एज प्रोड्यूसर, ऑथर एज प्रोड्यूसर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इनके कुछ वर्क है। ठीक है, एक और है एंटोनियो ग्राम्स्की। एंटोनियो ग्राम्स्की, ग्राम्स्की वाज एन इटालियन मार्क्सिस्ट थिंकर। ये देखिए ये कहाँ के है, ये इटालियन है। इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं हम लोग तो ज्यादातर थिंकर आपको फॉरेनर मिलेंगे। ग्राम्स्की वाज एन इटालियन थिंकर एंड राइटर एंड द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी, है ना। ये देखिए यहाँ से, ठीक है, हिज प्रिजन नोटबुक्स कंपोज्ड ड्यूरिंग हिज डेज इन प्रिजन, है ना। ये देखिए प्रिजन नोटबुक्स, ये है ना, ये प्रिजन नोटबुक्स, ये थोड़ा इसको जो है कैपिटल लेटर का लेना, प्योर नोटबुक्स का। ये क्या, ये इनको जेल में डाला गया था तब इन्होंने लिखा था नोटबुक्स, प्रिजन नोटबुक्स रिप्रेजेंट हिज सोशलिस्ट मार्क्सिस्ट बैंड ऑफ माइंड। ठीक है, जो उनके समाजवादी और मार्क्सवादी विचारों को क्या है बताता है। क्या है इनकी प्रिजन नोटबुक्स, ये जरूर ध्यान रखना है ना। ये वर्क है इनका, जिसका एंटोनियो ग्राम्स्की का। बहुत प्यारा यहाँ पर हेजीमोनी का कॉन्सेप्ट भी देते हैं, यहाँ ये देखते हैं। ये देखिए द कॉन्सेप्ट ऑफ हेजीमोनी, है ना, ये जरूर ध्यान रखना। द कॉन्सेप्ट ऑफ हेजीमनी इज कंसिडर्ड टू बी द यूनिफाइंग थ्रेड ऑफ हिज
रीजन नोट्स, यूनिफाइंग थ्रेड, है ना, थ्रेड मतलब आप देखिए यूनिफाइंग थ्रेड एक of his prison notes and appears to be the logical conclusion to his entire political career, है ना। तो ये जो हेजीमनी है, कॉन्सेप्ट ऑफ हेजीमनी, उनकी विचारधारा का एक मूल मंत्र है, यूनिफाइंग थ्रेड है ना। और उन्होंने जो बुक भी लिखा है वो इसी के आधार पर है, और आगे चल के उनके पूरे पॉलिटिकल करियर में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अब वो क्या मानते हैं देखते हैं। द बेसिक प्रीमाइस, ये देखिए, द बेसिक प्रीमाइस ऑफ द थ्योरी ऑफ इस, है ना, एक सेकंड, ये हाजी लिख दिया है, ठीक है, ये यहाँ पर ये पढ़ लेना है ना, हेजीमनी, है ना, ये वाला पढ़ लेना, ठीक है। द बेसिक प्रीमाइस ऑफ द थ्योरी ऑफ हेजीमनी इज दैट, ये देखिए यहाँ से ये बहुत महत्वपूर्ण है, मेन इज नॉट रूल्ड बाय फोर्स। एक सेकंड, ठीक है, देखिए क्या है, मेन इज नॉट रूल्ड बाय फोर्स अलोन बट बाय आइडियाज। इस बात को आप जरूर ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। मैन इज नॉट रूल्ड बाय फोर्स अलोन बट बाय आइडियाज, यानी ये हेजीमनी का कॉन्सेप्ट है, पॉलिटिकल है एक तरीके से, जो सत्ता की बात होती है उसकी बात करता है हेजीमनी। वो कहता है कि मनुष्य क्या है, बल से, मनुष्य के ऊपर बल से शासन नहीं किया जाता, बल्कि आइडियाज से किया जाता है। आप देखिए, भारत ही नहीं, दुनिया में जितने भी लीडर हैं, जितने भी शासन में हैं या जो शासन में आने का प्रयास कर रहे हैं, वो सब क्या कर रहे हैं, अपने आइडियाज दे रहे हैं, है ना। जो मान ले भारत सरकार में या किसी राज्य में, किसी भी अपने स्टेट में, मान ले इंडिया की हम बात करें, तो जहां पर भी जो स्टेट में जो सरकार है उसके अपने आइडियाज है। अब दूसरी सरकार जो विपक्ष में है, ये विपक्ष में, वो अपने आइडियाज दे रहे हैं और वो रूल करेंगे। समझ में आ रहा है ये सारा, कितने प्यारे कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। मैन इज नॉट रूल्ड बाय फोर्स बट फोर्स अलोन, फोर्स अलोन बट बाय आइडिया, मतलब फोर्स तो है ही, लेकिन एकमात्र फोर्स सोर्स नहीं है, कानून, लॉ एंड ऑर्डर भी है उनके पास में, लेकिन केवल लॉ एंड ऑर्डर नहीं, और भी है, बहुत सारे आइडियाज है कि हम आपका ये वेलफेयर करेंगे, और एक अपनी विचारधारा है ना। यहाँ पर भारत में बहुत सारी पार्टियां, मैं नाम नहीं लूंगा, हर एक राजनीतिक दल की अपनी विचारधारा, अपने आइडियाज है, जिसके आधार पे वो क्या है, लोगों के ऊपर, जनता के ऊपर शासन करते हैं, रूल करते हैं। ये सार नो, आई होप यू अंडरस्टैंड इट, क्लियर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फॉर ग्राम्सकी ऑल मेन आर इंटेलेक्चुअल्स, ये देखिए ग्राम्सकी के अनुसार क्या है, ऑल मेन आर इंटेलेक्चुअल्स बट नॉट ऑल मेन हैव इन सोसाइटी द रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। देखिए कितनी बड़ी बात कही यहाँ पर ग्राम्सकी साहब ने। स्टूडेंट, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लिटरेचर हमें बहुत सारी कॉन्सेप्ट सिखाता है। ग्राम्सकी के अनुसार सारे लोग, हर व्यक्ति क्या है, बुद्धिमान है, लेकिन समाज में बुद्धिमान इंटेलेक्चुअल का रोल करने के लिए हर व्यक्ति को अवसर नहीं मिलता है। कुछ लोगों को उसका रोल मिलता है और वो लीडर बन जाते हैं, लीडर बन के वो इंटेलेक्चुअलिटी को क्या है, शो करते हैं। कितनी बड़ी बात क्या है, समझ में आ रहा है ये साहब, कि ऑल मेन आर इंटेलेक्चुअल्स बट नॉट ऑल मेन हैव इन सोसाइटी द रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। समझ में आ रहा है, ये एंटोनियो ग्राम्सी का है, ये कोटेशन दे दिया, यही दे दिया, मैन इज नॉट रूल्ड बाय फोर्स अलोन बट बाय आइडियाज, हु सेड दिस, हु गेव दिस आइडियाज। हाँ ऋतुराज, और वैसा पढ़ाने वाला भी होना फिर ऋतुराज, है ना, ठीक है। आई एम जोकिंग, आई एम क्रेकिंग, है ना, ठीक है। सी, all men are intellectuals but not all men have in society the role of intellectuals। ये quotation दे दिया, पूछ लिया who has said, by whom this quotation was said, who said this, who gave these ideas, who gave this concept। तो आपको नाम लेना है एंटोनियो ग्राम्स्की का, ठीक है। चलिए, लिटरेचर गिव्स टू अस लॉट्स ऑफ नॉलेज डेफिनेटली, लेकिन पढ़ाने वाला भी वैसा होना। आई एम क्रेकिंग, ठीक है। चलिए, ग्राम्स्की डिवाइड्स इंटेलेक्चुअल इनटू टू मेन कैटेगरीज, दो कैटेगरीज में बांटा है इन्होंने, कौन कौन सी है,
नंबर एक द ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल एंड दूसरा है द ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये हेजीमनी, पावर, आइडियोलॉजी, ऑर्गेनिक एंड ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स, ये ग्राम्सकी के कुछ कॉन्सेप्ट हैं, हेजीमनी का, पावर एंड आइडियोलॉजी, ऑर्गेनिक एंड ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स। ठीक है, तो इनके ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ये पूछ सकते हैं आपसे कि हेजीमनी का कॉन्सेप्ट किसने दिया। वो दिया एंटोनियो ग्राम्सकी ने। पावर एंड आइडियोलॉजी का कॉन्सेप्ट एंटोनियो ग्राम्सकी ने। ऑर्गेनिक एंड ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स का ये भी जो है ये एंटोनियो ग्राम्सकी ने दिया है। तो आज के लिए हमारी जो क्लास है, कैसा लगा आज की क्लास? आपको कुछ मिला, नया यूनिक चीजें मिली? या सार नो, टेल मी। Yes, I actually, I'm sorry for that. Actually, I'm very sincere, disciplined. But unfortunately, for last 1 year, it's happening with me. 1.5 year, there's so many works have been going on. Doing PhD, I'm teaching somewhere else. Sometimes family problems, some issues are going on. It happens. So unable to take rest more. That's why sometimes it happens. But I will try to give the best. Okay, you know. So and all the students are very nice. You all are very nice. Very good. Everyone is taking interest. Rituraj, tell to Pooja also she did not attend today's class. Viren is there, and some of the students they did not attend the class today. I think I no, actually, free we cannot be free, but we will have some more time. Now it's going on, and it's okay. So thank you very much. And this is the end of the class. And student, one more thing I would like to tell you: be confident and go through go through the previous classes. But it's it's Sunday today, no? It's 7 o'clock. I will tell her. Rituraj is saying that, है ना? Yes, yes. I will tell her. ठीक है? चलिए चलिए. So thank you very much. Wish you all the best, and I hope you enjoyed the class today. And once again, I tell you, this is the best platform in all over India for NET JRF preparation. Filler form. It is totally dedicated NET JRF preparation, and we are just targeting December 2023, and we have time October, November, and December, and definitely we will cover the syllabus, then MCQs and crash course. Everything will be very fine. आपको घबराना नहीं है। कल्चरल स्टडीज बहुत जल्द कंप्लीट होगा, नोट्स अपलोड हो जाएंगे, फिर आपका थ्योरी और क्रिटिसिज्म है ये भी जल्द होगा। फिर जो 4 यूनिट है 1 2 3 4 पोएट्री ड्रामा थोड़ी बड़ी है, वो लंबी हमारी चलेगी, लेकिन हम प्रयास करेंगे उसको 1.5 आवर या 2 आवर्स का जैसा भी हम सेशन लेंगे। ठीक है, तो हम उसको जो है कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। और किसी को कुछ कहना, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, है ना? यू हैव 1 मिनट टाइम, गिविंग यू 1 मिनट टाइम इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू हैव। हाँ, यस यस, है ना? इट्स ओके, ठीक है। ओके, सुनील, Sunil, from where are you? You both are you from Bihar? Okay, it's okay. So one thing I would like to tell you, tell your friend and colleagues also to join these classes, because we are providing the best content, है ना? तो आप अपने किसी फ्रेंड को उनको जरूर कहें, इनका एडवांटेज लें। और इंग्लिश लिटरेचर देयर इज लॉट ऑफ स्कोप इफ यू क्वालिफाई यूजीसी नेट एंड जेआरएफ, or as Sunil has passed the state of Bihar, so definitely you are going to get good government job, definitely। अगर आप ये एग्जाम कर ले तो दिस इज दैट इज व्हाई इंग्लिश लिटरेचर इज वन ऑफ द मोस्ट करियर ओरिएंटेड सब्जेक्ट। एंड वन मोर थिंग, डेवलप एक लास्ट एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि SLRW पे वर्क ऑन, SLRW वर्क ऑन SLRW। ठीक है, एस मतलब इसमें आप देखेंगे स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, प्लीज पे अटेंशन टुवर्ड्स। अब देखिए कि आपका कौन सा पार्ट वीक है। स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इस सेक्शन में SLRW में से जो भी पार्ट वीक है उस पर वर्क करना शुरू करिए। एज अ
एज अ इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट, तो आपको इसकी तैयारी करना पड़ेगी। ठीक है, आपको जब आप सिस्टम में आ जाएंगे तो वहां पर जो है आपको बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए इंग्लिश के ऊपर। ठीक है ना? तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, ओके, थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं, है ना? चलिए। यस, जो भी पार्ट आपका वीक है उसमें से उस पर फोकस करिए, है ना? थैंक यू, चलिए आज के लिए। यस, ओके, ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं।